Mm. Good morning, all. Let us start with today's topic now. Okay, So, okay, first, ma'am. Please go ahead. thank you. As I had informed you yesterday, first we will start with few theory questions. Okay, on the topic which we had discussed yesterday. Okay, so let us start with these questions. Okay. Is this screen is clearly visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So just read first question and let us see. For a given solid, closely spaced energy levels of all electrons in a particular orbit is called valence band, energy band, conduction band, and band gap. Okay. What will be answer here? Option here. The closely spaced energy Energy level band. of all electrons in a yes energy band, particular orbit. Okay. For example, if there are electrons present in the first orbit, then the corresponding plus energy levels of all electrons which are present in the first orbit forms first energy band, and so on. Okay. So second, in insulator, the valence band is partially filled with electrons. The conduction band is partially filled with electrons. The conduction band is filled with electrons and valence band is empty. The conduction band is empty and the valence is filled with electrons. So which will be the correct here option here? So first band is here. If we see the position of this band, then the next permitted band beyond valence band is conduction band. So what is the case in case of insulator? Okay, what is the true statement in case of insulator? Insulator में क्या होता है? Which band is filled and which band is empty or partially filled? What is the band gap, range of band gap or forbidden energy gap between these? Yesterday we had seen that the separation or difference between these two bands, valence band and conduction band, is called क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस बैंड और कंडक्शन में जो डिफरेंस रहता है, सेपरेशन रहता है, क्या कहते हैं सेपरेशन को? यस ममता एंड मनीषा. The difference, the separation between conduction band and valence band in energy band diagram is called band gap ना, और energy gap, या फिर इसको forbidden energy gap कहते हैं. Okay. Why forbidden? Forbidden means electrons or charges are not allowed in this gap. Either they can be in valence band or they can move to conduction band. Okay. So in between these two bands, charges are not allowed. Therefore, this gap is called forbidden energy gap. Okay. Now, in case of insulator, we had discussed yesterday that this band gap is very large. Okay. It is greater than 3 electron volt up to 15 electron volt. Okay. So since this band gap is very large, even at room temperature, it is not possible for electrons to jump from a valence band to conduction band. And therefore, in case of insulators, particularly, the valence band, though the valence band is filled with electrons, the conduction band is empty. Okay. Conduction band क्या रहते हैं? Empty रहते हैं. Okay. Because at even at room temperature, these electrons in the valence band are not getting sufficient energy to move to conduction band. Electrons को इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि वो इतना बड़ा बैंड गैप क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में मूव हो सके. okay? क्योंकि ये गैप बड़ा है. सो ये जो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इतनी बड़ी बैंड गैप क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जाए. So tell me which will be the correct option here now. कौन सा करेक्ट ऑप्शन है?
Read options carefully and answer me. I'm waiting for your answer. D answer. Yes, D answer is correct. Conduction band empty रहते हैं, okay, as there are no electrons available for conduction, and valence band is filled with electrons. Okay, क्योंकि वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. Okay, let's move towards next now. The energy band gap is maximum in. Yesterday we had already discussed the energy band gap for in case of metal, conductors and insulators. So energy band gap is maximum in. Maximum energy band gap किसमें रहेगा? Metal, superconductors, insulator और semiconductors. Very simple question. Please answer. Yesterday we had seen that in case of metal, the energy band gap, अगर मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप है एक दूसरे से, तो बैंड गैप कितनी रहती है? 0 रहती है. एंड इवन इफ दे आर नॉट ओवरलैपिंग तो भी ये बैंड गैप कम रहती है. कम रहती है मतलब कितनी रहती है? इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. देन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में तो इतनी रहती है 3 इलेक्ट्रॉन टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेमीकंडक्टर में कितनी रहती है? इट इज लेस देन, सेमीकंडक्टर में इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और up to 1 electron volt. Okay, greater than or equal to 1 electron volt and less than 3 electron volt इतनी रहती है. Okay, so किसमें एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है? Now all the things are in front of you. Please tell me. I want answers from you. Saloni, what is your answer? Manisha, I'm audible to all, na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then answer my question. क्या आएगा? एनर्जी बैंड गैप ज्यादा किसमें रहती? इंसुलेटर ना. C अभी हम value. यस सी, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर में ज्यादा बैंड गैप रहती है, इसीलिए तो वैलेंस ऑर्बिट में, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते, मूव नहीं हो पाते, बिकॉज दिस बैंड गैप इज वेरी लार्ज इन केस ऑफ इंसुलेटर्स. और कंडक्शन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अवेलेबल, इसीलिए तो इंसुलेटर्स के दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So let's move towards next. The band gap in germanium and silicon in electron volt respectively are. क्या बैंड गैप है? अभी ये वैल्यूज यू नीड टू रिमेम्बर हियर. ओके, बैंड गैप इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में कितनी है? जस्ट अ मिनट. आंसर में क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा. जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग.
Now can you see the question? Read the question. Just let me know. दिख रहा है क्वेश्चन अभी? Fourth question. Yes, ma'am. The band gap in germanium and silicon in electron volt. So ये तो याद रखनी पड़ेगी वैल्यू कि बैंड गैप से जर्मेनियम के बैंड गैप रहते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सिलिकॉन की रहती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So let's move to the next question. मैं वापस वैल्यू बता दो. Yes, 0.7 for germanium and 1.1. Actually 0.72 रहते हैं if we take the perfect value. Okay. जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Okay, shall we move towards next question? Yes, ma'am. So the fifth question is, metals are good conductors of heat as compared to the insulators because they contain free electrons. Their atoms are relatively far apart. Their atoms collide frequently. They have reflecting surfaces. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Why metals are good conductors of heat? A. Yes. Okay, very simple question. In your lower standard also you had studied this concept that metal contains large number of free electrons, and that's why they are good conductors of heat and electricity. Then this next, the main distinction between conductors, semiconductors and insulators is concerned with binding energy of free electrons, width of forbidden energy band, work function of free electrons, and temperature coefficient of resistance. On what basis we are classifying materials as conductors, semiconductors and insulators? Main distinction क्या है उसमें? बाइंडिंग एनर्जी के बारे में एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर में देखा था हम लोगों ने. Yes, ma'am. ये आंसर. ए आंसर आएगा. Yes, ma'am. B आंसर मैम. यस, बी आंसर है. देखो यस्टरडे वी हैड सीन ना मेटल से, कंडक्टर से. तो कंडक्टर्स में ये जो बैंड गैप है ये बहुत एक तो 0 है या फिर कम है कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में जो गैप है वो. मेटल्स के केस में, कंडक्टर्स में केस में, इसमें इसीलिए जो वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दे कैन इजीली जंप टू कंडक्शन बैंड इवन व्हेन दे गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं. या फिर जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर लेकर डिस्कस करें तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रहते जो कि न्यूक्लियस से लूजली अटैच्ड है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो लूजली अटैच रहते हैं न्यूक्लियस से. उनको थोड़ी भी एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या होते हैं, दे बिकम फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से फ्री होते हैं और मेटल टू मेटल मूव हो सकते हैं. सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, दे बिकम अवेलेबल फॉर कंडक्शन वंस दे गेट फ्री. तो मेटल्स में वो इजीली फ्री होते हैं और कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि उनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो गैप है इन केस ऑफ मेटल ये बहुत कम है, 0 रहती है जो गुड कंडक्टर है इसमें.
इन केस ऑफ इंसुलेटर ये गैप बहुत ज्यादा है, और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ये गैप दोनों के बीच में, इंसुलेटर और मेटल के में जितनी गैप रहती है उनके बीच में। तो ये जो कंडक्टिविटी है ये किस पे डिपेंड रहती है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये मटेरियल के तीन टाइप्स है, इंसुलेटर, कंडक्टर्स। सो इस पे डिपेंड है कि बैंड गैप कितनी बैंड गैप है उनमें उनमें बैंड गैप जितनी कम उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, वैलेंस कंडक्शन बैंड में यूज कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ फोरबिडन एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड को ही फोरबिडन एनर्जी बैंड भी कहते हैं। फोरबिडन जैसे अभी डिस्कस किया था, फोरबिडन मीन्स नॉट अलाउड। ये जो गैप रहती है उसमें चार्जेस को अलाउड नहीं रहते, आइदर दे कैन रिमेन इन वैलेंस बैंड, स्टे इन वैलेंस बैंड, एंड दे कैन गेट बाय रिसीविंग sufficient energy they can move to conduction band. In between this electrons, these charges are not allowed, इसलिए इस गैप को कहते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप या फिर फोरबिडन एनर्जी बैंड। तो इसकी विड्थ मतलब साइज किसकी कितनी है इसके ऊपर डिपेंड है कि वो मटेरियल कंडक्टर कैटेगरी में आएगा, सेमीकंडक्टर की, इंसुलेटर में। इज दिस क्लियर टू यू? Yes, आ रहा है समझ में ये? ओके अभी नेक्स्ट देखते हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड the forbidden gap will तो ये ज्यादा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम अभी, जो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है उसमें वी विल सी ओके व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड। ओके so that time we will revise this, we will discuss on this question. So to let us now move towards next topic. Just give me a second, I'm coming back. 15 minutes. So now we will discuss about intrinsic and extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor क्या होते हैं? First we will discuss that and then we will go for extrinsic semiconductor. So as we have seen that कि semiconductor में क्या होता है, तो ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, तो वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, वैलेंस ऑर्बिट में है, वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। okay? और ये जो गैप है एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। तो एट रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से उनको सफिशिएंट एनर्जी मिलती है एंड दे जंप टू कंडक्शन बैंड। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे सपोज यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी, सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी रूम टेम्परेचर पे, और वो क्या करेंगे, दे विल जंप टू कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, देयर आर ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन इन कंडक्शन बैंड। और इसलिए ये जो सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है। सो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करते, कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करते। ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स रहते,
उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स रहते, एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिनमें कुछ मिलाया नहीं है एक्सटर्नल एलिमेंट। ऐसे जो प्योर सेमीकंडक्टर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि प्योर सिलिकॉन है या फिर प्योर जर्मेनियम है, ऑल दीज आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एटम, तो सिलिकॉन एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सिलिकॉन में? देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सिलिकॉन एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट। नाउ कोई भी सिलिकॉन एटम हम लोगों ने लिया, देन एवरी सिलिकॉन एटम, सपोज इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस ऑर्बिट में, तो सिलिकॉन एटम क्या करते हैं, सिलिकॉन एटम, every silicon atom share its 4 valence electron with 4 neighboring atoms। जैसे कि ये जो ब्लू कलर में पहले वाला सिलिकॉन एटम दिखे उसने दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए अपने। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर इज, ये जो सिलिकॉन एटम है, इस सिलिकॉन एटम ने 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड बिकॉज ऑफ दिस शेयरिंग, ये जो एटम्स का ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट मतलब क्या कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इट कैन होल्ड मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। तो और कौन सा बॉन्ड है, व्हेन 2 एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होते हैं वहां पे, कोवैलेंट बॉन्ड। सो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। हर एक सिलिकॉन एटम ने 4 नेबरिंग एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया बाय फॉर्मिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड। अभी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, सो इसीलिए अगर हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे देखें, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये टर्म केमिस्ट्री में भी गया होगा ना, जीरो के लिए -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि सेमीकंडक्टर, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हम बॉन्ड देखें तो वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो दिस वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। और कंडक्शन बैंड जो रहते हैं वो एम्प्टी रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है उसमें कंडक्ट करने के लिए। नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। और इसीलिए एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन पे, ये जो सिलिकॉन है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते। वाई दे बिहेव लाइक इंसुलेटर? बिकॉज दे हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, सो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में है। all electrons are forming bond with neighboring atoms by sharing. Each silicon atom here is forming a covalent bond, okay, and completing its octet. So कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है कंडक्शन के लिए, all electrons are there in the bond, okay. So the conduction band is empty. कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्ट करने के लिए, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, okay, which can conduct, okay, or which can move from atom to atom. और इसीलिए since there is in this intrinsic semiconductor at absolute zero, the valence band is completely filled and conduction band is completely empty. uh, this silicon behaves as insulator at absolute zero temperature. Okay, this is the case I'm talking when the temperature is absolute zero, -273 degrees Celsius. Okay, now let us discuss the case what happens to this silicon at room temperature. रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? तो जैसे हम लोगों ने देखा कि हर एक सिलिकॉन एटम के वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है।
और हर एक सिलिकॉन ने नेबरिंग एटम के साथ, जैसे ये नेबरिंग एटम है सिलिकॉन का, ये नेबरिंग एटम है, 4 नेबरिंग एटम्स के साथ क्या किए, इलेक्ट्रॉन शेयर किया एंड दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट, और उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया बाय फॉर्मिंग दिस, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके दे हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट. लेट मी शो हियर दिस कोवेलेंट बॉन्ड हियर. सो रूम टेम्परेचर क्या पे क्या होते हैं, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. जैसे सपोज ये कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो गया, तो when this covalent bond breaks, okay, uh, because of thermal energy, रूम टेम्परेचर पे उनको थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी मिलती है, और इसी की वजह से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं. नाउ व्हेन दिस कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रेज्ड टू कंडक्शन बैंड. पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि वैलेंस बैंड फिल्ड है कंप्लीटली और कंडक्शन बैंड एम्प्टी था. लेकिन अभी जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं कुछ, तो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन बैंड में चले जाते हैं. यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया, वो कंडक्शन बैंड में चला गया. अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे गैप हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट होगी. Why there is this vacancy creates here? Because that electron, when this bond breaks, the electron has moved away from valence band. तो वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी. वैकेंसी का मतलब पता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जॉब के लिए यहाँ पे वैकेंसी है क्या, सो वैकेंसी मीन्स देर इज एन एम्प्टी प्लेस. सो यहाँ पे भी क्या होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन वहां से मूव होता है. द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम कंडक्शन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ये इलेक्ट्रॉन अभी वैलेंस ऑर्बिट में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है. उन्होंने बॉन्ड फॉर्म किए थे नेबरिंग एटम्स के साथ, मगर थर्मल एनर्जी की वजह से रूम टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए. सारे नहीं, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव होते हैं. नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव, उनकी जगह पे गैप रह जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एम्प्टी स्पेस रह जाता है. सो ये जो एम्प्टी स्पेस है या फिर ये जो वैकेंसी है क्रिएट हुई है, उसको होल कहते हैं. क्या कहते हैं, होल. तो होल इज द वैकेंसी इन द बॉन्ड. ये कोवेलेंट बॉन्ड में जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ड्यू टू द डिपार्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड इज कॉल्ड होल. होल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड से चले जाने की वजह से उनकी जगह पे जो वैकेंसी क्रिएट होती है उनको क्या कहते हैं, होल. ठीक. तो जब भी कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में से चला गया, तो उसकी जगह पे एक होल क्रिएट हो गया. ठीक. और इलेक्ट्रॉन चला कहाँ पे गया, तो वैलेंस बैंड से निकलकर वो कंडक्शन बैंड पे चला गया. सो याद रखो, whenever every ड्यू टू एवरी थर्मली ब्रोकन बॉन्ड, हर एक थर्मली ब्रोकन बॉन्ड की वजह से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है. क्रिएट मतलब कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो बॉन्ड में एक होल क्रिएट हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. सो रिमेम्बर, ड्यू टू एवरी थर्मली ब्रोकन बॉन्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर. क्या करती है, जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर. सपोज दो बॉन्ड ब्रेक हो गए और ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, वैलेंस बैंड में चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया. और इसकी वजह पे से यहाँ पे जो गैप हो गई उसको हम लोग क्या कहेंगे, होल. सो जितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से रूम टेम्परेचर पे, उतनी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाती है. So intrinsic semiconductor में we have, if there are n number of electrons in conduction band, तो ये इलेक्ट्रॉन जो जगह छोड़ के आए हैं वहां पे उतने ही होल क्रिएट हुए होंगे. And therefore, in case of intrinsic semiconductor, the number of electrons is equal to the number of holes. Are you getting this? Yes, sir. तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले तो हर एक सिलिकॉन एटम ने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ या फिर नेबरिंग एटम के साथ उनमें उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंस बैंड में.
तो उन्होंने क्या किया है, नेबरिंग एटम के साथ ये चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो चार इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे, वो शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हैं। ठीक, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उनके पास। एट एब्सोल्यूट जीरो उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, स्टेबल है इलेक्ट्रॉन, नो कुछ भी ये नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और इसलिए एनर्जी डायग्राम कैसे दिखाएंगे हम, एट 0 केल्विन सिलिकॉन की, तो ये वैलेंस बैंड भरा हुआ है, उसमें चार इलेक्ट्रॉन्स थे। और ये जो कंडक्शन बैंड है, ये तो एम्प्टी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें कंडक्ट करने के लिए। सो एट 0 केल्विन ये सिलिकॉन इंसुलेटर की तरह है, क्योंकि कंडक्शन बैंड उसका एम्प्टी है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन हियर। लेकिन यही केस, सॉरी, the scenario change in एट रूम टेम्परेचर पे ये पिक्चर बदल जाता है। कि क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे मतलब 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ गया, 0 केल्विन मतलब -273। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मली कितना रहेगा, यू कैन टेक 28 to 35 तक ले सकते हो। तो इस टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स को या एटम को, मटेरियल को एनर्जी मिल गई, सॉलिड को। सो ये थर्मल एनर्जी जो मिली है, उस थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ बॉन्ड ब्रेक्स हुए। सारे बॉन्ड नहीं ब्रेक होते, फ्यू थर्मल बॉन्ड्स ब्रेक, ब्रेक्स ड्यू टू दी ब्रेक ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी। बॉन्ड ब्रेक हुए होते तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वहां से निकल जाता है। अभी ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में था, वो वहां से निकल कर कहाँ पे गए, कंडक्शन बैंड पे गए, क्योंकि उसको एनर्जी मिली। एनर्जी मिल गई तो उसने ये बैंड गैप थी, ये जो सेपरेशन था वो क्रॉस कर दिया एंड इट जम्प्स टू कंडक्शन बैंड। अभी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से छोड़ के चला गया तो वहां पे जगह क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। इसी वैकेंसी को हम लोगों ने कहा होल। तो जितने भी थर्मल बॉन्ड ब्रेक होंगे, अगर यहाँ पे एक थर्मल बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाता है। और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इफ देयर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन, इट मीन्स दैट देयर आर एन नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड। तो देखो ये होल कहाँ पे क्रिएट हो गए, जगह यहाँ पे क्रिएट हो गई है, एम्प्टी स्पेस कहाँ पे क्रिएट हो गए, वैलेंस बैंड में। सो वैलेंस बैंड में होल क्रिएट होते हैं एंड कंडक्शन बैंड में वो जो इलेक्ट्रॉन चला गया वो कहाँ पे आ गए, कंडक्शन बैंड पे। सो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन, इलेक्ट्रॉन्स कौन से बैंड में रहते, कंडक्शन बैंड में रहते। और होल्स कहाँ पे रहते, वैलेंस बैंड में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में ये होल क्रिएट हो गए। सो होल्स आर देयर इन द वैलेंस बैंड। और ये इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के गए हैं बॉन्ड, वो कहाँ पे गए, कंडक्शन बैंड में। सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। सो एनर्जी डायग्राम दिखाती हूँ मैं कैसे है, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे कैसे एनर्जी बैंड गैप डायग्राम, बैंड डायग्राम होती है। तो ये दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सपोज तीन इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में गए, okay? तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे तीन होल क्रिएट हो गए। सो ये देखो कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन से उतने ही वैलेंस बैंड में होल से। और इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। और जब भी ऐसे, तो अभी क्या है, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस बैंड में होल से। तो जब भी हम लोग कुछ सेल कनेक्ट करते हैं उसको, सेमीकंडक्टर को, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव होने लगते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग करंट। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बट ये करंट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स या बहुत सारे होल्स नहीं है,
कुछ थर्मल बॉन्ड ब्रेक होते, सारे ब्रेक नहीं होते. सो वी हैव वेरी स्मॉल नंबर ऑफ होल्स एंड स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट सेमीकंडक्टर. और इसलिए ये जो भी करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये करंट बहुत स्मॉल है. इट इज टू स्मॉल फॉर एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. प्रैक्टिकल यूज के लिए ये करंट बहुत कम है. Okay? अगर हम लोग को ये सेमीकंडक्टर प्रैक्टिकली किसी पर्पस के लिए यूज करना है, तो इसकी कंडक्टिविटी हमें बढ़ानी पड़ती है. सो व्हाट वी कैन डू टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, दैट वी विल डिस्कस लेटर. सो यहाँ पे एक हम लोग को चीज समझ में आती है, वो मतलब इस सेमीकंडक्टर मेटल में डिफरेंस है. What is that thing which makes semiconductor distinctly different from metallic conductor? ऐसे कौन सी चीज है वो सेमीकंडक्टर को मेटालिक कंडक्टर से अलग करती है? दोनों भी कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर और मेटल. बट व्हाट इज दैट थिंग्स व्हिच क्रिएटिंग डिफरेंस इन दिस टू, मेटालिक कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर? तो वो चीज है कि प्रेजेंस ऑफ होल्स. मेटल्स में होल्स नहीं रहते, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बॉन्ड में जब भी इलेक्ट्रॉन चला जाता है छोड़ के, तो वहां पे क्या हो जाती है, गैप क्रिएट हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसको हम लोगों ने होल कहा. तो ये जो होल की कॉन्सेप्ट है, ये मेटल में नहीं रहती. दिस प्रेजेंस ऑफ होल्स मेक सेमीकंडक्टर्स डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम मेटालिक कंडक्टर्स. सो जैसे मेटल में एक ही कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सेमीकंडक्टर में दो कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. सो सेमीकंडक्टर ऑफर्स टू टाइप्स ऑफ करंट कैरियर. सेमीकंडक्टर में जो करंट होते हैं वो दो कैरियर्स की वजह से होता है. और उसमें दो पाथ रहते हैं कंडक्शन के. तो दो कैरियर कौन से कैरियर है? एक है इलेक्ट्रॉन्स के एंड दूसरे है होल्स. जैसे हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कंडक्शन बैंड में. सो वन पाथ इज थ्रू कंडक्शन बैंड कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा पाथ है वैलेंस बैंड कैरिड बाय होल्स. सो दो पाथ और दो कैरियर की वजह से सेमीकंडक्टर में करंट होता है. एक तो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, तो कंडक्शन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, दैट इज ऑल्सो कंस्टिट्यूट करंट. और बैंड में, वैलेंस बैंड में जैसे होल्स की मूवमेंट रहती है, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू करंट. So there are two types of current carriers and two paths for conduction. One path is through conduction band carried by the electrons, and another path is through valence band carried by holes. Okay. So जो total current है semiconductor में, suppose total current I से denote करते हैं. So this total current is the sum of इलेक्ट्रॉनिक करंट. इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, एंड होल करंट जो होल्स की वजह से है. सो टोटल करंट इज गिवन बाय आई इक्वल टू आई प्लस आई एच, द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट ड्यू टू होल्स. Okay, the sum of these two gives us total current. Are you getting this? Yes, ma'am. So देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस. पहले हम इसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन. तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ. So the point to remember here are, okay, the first is intrinsic semiconductor मतलब extremely pure semiconductor है, जिसमें कोई impurity ऐड नहीं है, extremely pure. दूसरी पॉइंट है तो मतलब एक्सट्रीमली प्योर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते कंडक्शन के लिए अवेलेबल. लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और उसकी जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको होल कहते हैं. तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट हो जाती है. जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रिएट्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन हम लोगों ने देखा कि सारे बॉन्ड ब्रेक नहीं होते रूम टेम्परेचर पे, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते.
और इसीलिए देर आर वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स जनरेटेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इतने कम करंट रहते हैं कि वो हम किसी भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। उतने स्मॉल करंट से कुछ भी काम नहीं होगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ भी का यूज मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उतना छोटा करंट हम लोग के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वी ऐड सम इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी ऐड करके हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाते। कंडक्टिविटी से दिखाते तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ही लो है। एंड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सच इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी एड सम सूटेबल इम्प्यूरिटी। क्या ऐड करते हैं? सम सूटेबल इम्प्यूरिटी। कोई भी इम्प्यूरिटी ऐड करके नहीं चलती। वी एड सम सूटेबल इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सटर्नल मैटर है, एक्सटर्नल एलिमेंट है। ओके, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट प्योर सेमीकंडक्टर। कुछ बाहर से ऐड करे उसके लिए इसको इम्प्यूरिटी कहते हैं। ओके, so by adding some suitable impurity to pure semiconductor we increase its conductivity। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग को कैसे मिलते हैं? by adding, अभी सेमीकंडक्टर के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। प्योर सेमीकंडक्टर में मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं एंड वी गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, सो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग। जिस प्रोसेस से हम लोग कुछ इम्प्यूरिटी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं। जस्ट अ मिनट। The process by which we add suitable impurity to pure semiconductor is called doping। okay? और ये जो इम्प्यूरिटी आइटम्स है जो हम इसमें ऐड करते हैं उस इम्प्यूरिटी आइटम्स को कहते हैं डोपेंट। सो लेट अस डिफाइन दिस फ्यू टर्म्स। डोपिंग किसको कहते हैं? प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर। प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर को डोपिंग कहते हैं। okay? और डोपेंट्स किसको कहते हैं? जो इम्प्योरिटी आइटम्स हम लोग ऐड करते हैं उनको डोपेंट्स कहते हैं। एंड जो सेमीकंडक्टर डोप्ड हुए मतलब जिसमें मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, ओके, इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो भी मुझे मिल रहा है सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर, तो उस डोप्ड सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद हम लोग को क्या मिलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी हम लोग ये जो डोपिंग की जो प्रोसेस करते हैं, ये करते टाइम हम लोग को ये कुछ चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। फ्यू थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ। जैसे कि ये जो डोपेंट एटम ऐड करते हैं हम लोग, उस डोपेंट एटम की ऐड करने के बाद ये जो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर्स रहते हैं उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। जो मेन प्योर सेमीकंडक्टर है ना, उसका शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ऐसा डोपेंट एटम ऐड करना चाहिए, ऐड करने है हम लोग को प्योर सेमीकंडक्टर में, विच इज नॉट डिस्टोरिंग द ओरिजिनल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर है उसका स्ट्रक्चर जो बिगाड़ेगा नहीं, ऐसा डोपेंट एटम हम लोग को ऐड करना रहता है। सो ऐसा डोपेंट एटम ऐड करने के लिए जितनी सेमीकंडक्टर की साइज रहती है सेमीकंडक्टर एटम्स की, सपोज मुझे सिलिकॉन में कुछ डोपेंट एटम ऐड करना है, तो सिलिकॉन की जितनी साइज है उतने ही साइज का सिलिकॉन एटम की जितनी साइज रहती है उतने ही ऑलमोस्ट
तो अप्रोक्सीमेटली उतने ही साइज का डोपेंट एटम मैं उसमें क्या करूंगी, ऐड करूंगी, ताकि ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिगड़े ना. So the size of dopant atom should be nearly same as that semiconductor atom, so that the structure of this pure semiconductor atom will not get distorted. So this is all about extrinsic semiconductor. इतना समझ में आ रहा है? एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं. व्हाई वी ऐड इम्प्यूरिटी? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और कंडक्टिविटी क्यों बढ़ानी है? बिकॉज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लो टू यूज फॉर एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं. ये जो प्रोसेस है इम्प्यूरिटी ऐड करने, डोपिंग कहते हैं. जो इम्प्यूरिटी एटम्स ऐड करते हैं उसको डोपेंट कहते हैं. और क्या हम लोग को याद रखना है, किस चीज का ख्याल रखना है? क्या ये डोपिंग प्रोसेस में प्योर सेमीकंडक्टर्स की साइज चेंज ना हो. इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा डोपेंट एटम उसमें ऐड करते हैं जिसकी साइज नियरली प्योर सेमीकंडक्टर एटम्स जितनी हो. प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने के बाद, डोपेंट एटम ऐड करने के बाद जो डोप्ड सेमीकंडक्टर मिलते हैं उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट semiconductor. I hope you are getting this. Anyone have any doubt in this? कुछ डाउट है इसमें? अदरवाइज वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन. तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. जस्ट अ मिनट. Only 3 are present today. Mamta, Manish and Selini. अभी क्वेश्चन का आंसर I think so you can give. If the temperature of a semiconductor is increased, then the forbidden gap will. जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर कम होता है, 0 केल्विन रहता है, तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. मतलब उनमें बैंड गैप ज्यादा रहती है. कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड क्रॉस करके में नहीं जाता, नहीं जा सकता है. सो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है 0 केल्विन पे. तो इसीलिए सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होते हैं, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एंड कुछ इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. क्यों जंप कर पाते? बिकॉज ये जो फोरबिडन एनर्जी गैप है ये कम हो जाती है टेम्परेचर जैसे बढ़ाते. तो सो याद रखो, if the temperature of semiconductor is increased, then the forbidden gap क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ये गैप कम हो जाती है, एंड therefore these electrons can jump from valence band to conduction band. So temperature increases, okay, forbidden gap decreases, okay, in case of semiconductor. So you can remember this relation, okay, how forbidden energy gap varies with temperature. Then let's move towards next question. Yeah, question number 8. A hole in a semiconductor is rather different from an electron because it has एक मिनट फिर से शेयर करती हूँ क्वेश्चन.
क्यों से नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रही, एक मिनट। स्क्रीन लॉक हो जाती है ना, तो फिर से शेयर करना पड़ता है, नीड टू शेयर अगेन एंड अगेन। One thing I forgot to tell you in this discussion, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखे कि हर एक सिलिकॉन एटम उसके चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार नंबरिंग एटम्स के साथ शेयर करता है। ठीक, और जब भी थर्मल एनर्जी की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक, तो जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चला जाता है कंडक्शन बैंड में, और वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। दिस वी हैव सीन जस्ट नाउ। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है इसको होल कहते हैं, एंड दिस होल बिहेव्स एज इफ इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ये होल कैसे बिहेव करते हैं कि जैसे कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज चला गया और फिर ये वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो नेगेटिव चार्ज चला जाने की वजह से ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, होल क्रिएट हुआ है, इट बिहेव्स एज इफ इट हैज पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि उस पे पॉजिटिव चार्ज है वैसे वो बिहेव करता है। सो याद रखना कि holes holes behaves as it has positive charge and electron has negative charge. Now answer this question number 8. क्या बोले क्वेश्चन नंबर 8 में, a hole in a semiconductor is rather different from an electron. ये इलेक्ट्रॉन से अलग है, क्यों? तो ऑप्शन दिए, उस पे 0 मास है, उसका मास 0 है, कि उस पे पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कि 0 चार्ज है। क्या आएगा आंसर? होल कैसे बिहेव करता है? पॉजिटिव। यस, it behaves as it if it has positive charge, so it is positively charged vacancy है ये जो वैकेंसी है जिसको होल कहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, suitable impurities are added to a semiconductor depending on its use. उसका क्या यूज है इसके बेसिस पे सुटेबल इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। दिस इज डन टू, ये क्यों किया जाता है इम्प्योरिटीज, व्हाई वी आर एडिंग इम्प्योरिटीज? टू इंक्रीज इट्स लाइफ, लाइफ बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर की, enable it to withstand higher voltage, increase its electrical conductivity, increase its electrical resistivity. Why we add suitable impurities in pure semiconductors? क्या आएगा आंसर? इम्प्योरिटी ऐड करने की हाँ, सी आंसर। यस सी। ओके, देखा हम लोगों ने कंडक्टिविटी लो रहती है प्योर सेमीकंडक्टर की, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वी ऐड इम्प्योरिटीज। करेक्ट, गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोनर एटम्स हैव एनर्जी लेवल, डोनर एटम्स के एनर्जी लेवल slightly below the conduction band, slightly above the conduction band. Just think about this, I'm coming. The donor atoms have high energy level, slightly below the conduction band, slightly above the conduction band, slightly below the valence band,
एंड स्लाइटली अबाउट द वैलेंस बैंड। याद रखो जैसे हम लोगों ने कहा था, डिस्कस किया कि जो डोनर एटम्स रहते, ये डोनर एटम्स ऐसे चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बढ़ाए। वो के गुड कंडक्टर्स नहीं रहते, बट डोनर एटम्स ऐड करते वक्त वो एटम्स ऐसे चाहिए कि वो प्योर सेमीकंडक्टर में, जिसमें भी हम लोग को वो ऐड कर रहे हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाए। जैसे सिलिकॉन में हम लोग अगर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी, प्योर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बढ़ानी है, तो मुझे कुछ उसमें ऐसा डोनर एटम ऐड करना है कि जिस ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़े। ठीक है? और इसीलिए जो डोनर एटम्स रहते हैं उनकी जो एनर्जी लेवल है, ये क्या रहती है, बिलो द कंडक्शन बैंड। मतलब इतने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते उनके, बट इट इज बिलो द कंडक्शन बैंड। एक लास्ट क्वेश्चन दिया है देन यहाँ पे, लास्ट में लास्ट ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक, अ प्योर सेमीकंडक्टर। एक शेयर करती फिर से मेरी इमेज। A pure semiconductor has low resistance, is an intrinsic semiconductor, सी ऑप्शन में बता रही हूँ, allows inadequate current to pass through it, is an extrinsic semiconductor। क्या this statement will be the correct in case of pure semiconductor? प्योर सेमीकंडक्टर क्या रहते हैं, रेजिस्टेंस उसका क्या रहता है, ऑप्शन ए देखो पहले, लो रेजिस्टेंस रहता है प्योर सेमीकंडक्टर। किया ना डिस्कस, जैसे कि सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर, उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो रहती है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है कंडक्शन के लिए, सो दे बिहेव एज अ इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। या फिर कंडक्टिविटी है भी तो बहुत कम है, कंडक्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी कम है मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना। तो पहले ऑप्शन ए क्या दिए, इट हैज लो रेजिस्टेंस, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम है, इसका मतलब उनकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट को अपोजिशन ज्यादा है, इसलिए तो उनकी कंडक्टिविटी कम है। सो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, प्योर सेमीकंडक्टर हैज लो रेजिस्टेंस, दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इज इट करेक्ट? प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। डेफिनेशन देखे ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के डेफिनेशन ये, दे आर एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सी और डी ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं, फिर भी सी और डी ऑप्शन डिस्कस करते। सी ऑप्शन था अलाउस इनएडिक्वेट करंट टू पास थ्रू इट, वो सफिशिएंट करंट पास नहीं करने देते खुद से, एंड इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है नहीं, प्योर सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, सॉरी बी इज करेक्ट हियर। अभी एक और क्वेश्चन है, देन वी विल स्टॉप हियर। डोपिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड इम्प्यूरिटीज बिकॉज, क्यों कहते होंगे डोपिंग मटेरियल्स को इम्प्यूरिटी? दे मेक सेमीकंडक्टर लेस प्योर, they alter the crystal structure, they change chemical properties, and they change the number of charge carriers. इसका सोच के रखना, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस।
because I have another meeting after this, so I'm stopping here. बट आज का टॉपिक समझ में है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. Yes, ma'am. सो नेक्स्ट टाइम हम लोग दो टाइप के कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज वी आर एडिंग ऑन प्योर सेमीकंडक्टर टू प्योर सेमीकंडक्टर. दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, तो वो डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे. ओके, मीन भाई यू जस्ट प्रिपेयर द. इसके पहले कौन सा टॉपिक लिया था हम लोगों ने, या Magnetron. मैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे थे. मैग्नेटिज्म के टेस्ट में देने वाली हूँ एक थियरी क्वेश्चन पे होगी, और that topic I will upload the notes, I mean required list of formulae based on magnetism on Google Classroom shortly. साइड बाय साइड जो भी तुम लोग के पास रेफरेंस मटेरियल है उससे उसका रेफरेंस लेके वो टॉपिक जस्ट गो थ्रू दैट टॉपिक एंड प्रिपेयर दैट टॉपिक. ओके, Okay. न्यूमेरिकल्स जो है उनके सॉल्यूशंस मींस हाउ यू फाइंड दैट आंसर वो भी अपलोड करना है, जस्ट लाइक लास्ट टाइम. थियरी क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, बट न्यूमेरिकल्स कैसे तुम लोग को वो ऑप्शन मिला है उसका जो वर्कशीट होगा सॉल्यूशन आंसर शीट वो भी अपलोड करनी है तुम लोग को क्लासरूम पे, so that I can just check how you are solving the problems. Okay, which logic you are using while solving particular problems. So any doubt in today's topic? Saloni, Mamta and Manisha, are you getting these things? No, ma'am. Manisha and Saloni, what about you? I got answer from Mamta, but what about you? If you don't have any query, then we can stop here. Okay, see you in the next lecture. Yes, ma'am, we can stop here. Okay, ma'am. Thank you. A pleasure. Bye.